ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقرہ آیت نمبر 14 زوینا خوبصورت بنا دی گئی اور زوینا زینت سے ہے، زینت اسی سے ہے، خوبصورت زا یا نون اس کا یعنی لوگوں کے دلوں میں خوبصورت بنا دی گئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں خوبصورت بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، خوب محبت۔ شہوت ان کی جمع ہے۔ شہوت کہتے ہیں خواہشات کو، یعنی مرد کی محبت عورت سے، مرد کی محبت عورتوں سے، من النساء عورتوں سے، والبنین ابن کی جمع ہے، اور بیٹوں سے، یعنی بیٹوں کی محبت، مرد کے دل میں عورت کی محبت اور اس کے بعد پھر بیٹوں کی محبت۔ والقناطیر قاف نون طا را 4 لفظ ہیں یہ اس کے روٹ میں، یہ رباعی ہے کیونکہ 4 لفظ روٹ 3 لفظ پر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ 4 لفظوں پر ہے اس کا روٹ، قاف نون طا را۔ اور قناطیر خزانے، والمقنطرہ اکٹھے کیے ہوئے، من الذہب سونا سونے میں سے، والفضہ اور چاندی، فا ضاد ضاد اس کا روٹ ہے فضہ، والخیل خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور خیل کی یعنی گھوڑوں کی، والمسومہ مسومہ سین واو میم اس کا روٹ ہے، یعنی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے گھوڑے۔ والانعام انعام مویشی جانور کو کہتے ہیں، گھوڑا، گائیں، بیل، بکری۔ والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاعن سامان ہے، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، متاع کہتے ہیں عارضی فائدے کی چیزیں، یعنی دنیا کی زندگی کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک عارضی فائدے کی چیزیں ہیں، یہ عارضی فائدے کی چیزیں ہیں دنیا کی، چند دنوں کے لیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، عورتوں کی محبت اپنے شوہروں کے لیے، شوہر کی محبت اپنے بیوی کے لیے، اور اسی طرح سے بیٹوں کی محبت، ہر انسان چاہتا ہے مجھے بیٹے ہوں، اور اسی طرح سے ایسے گھوڑے جو اعلیٰ نسل کے ہوں، یعنی ایسے گھوڑے یا ایسے گاڑیاں جو برانڈڈ ہوں، بہت اعلیٰ قسم کی ہوں، تو یہ محبت جو ہے، اور انعام مویشی جانور اس کی بھی محبت، اور کھیتی جو معاش کا ذریعہ ہوتی ہے، ہر انسان زمین جائیداد چاہتا ہے، ذمہ داری چاہتا ہے کہ میرے پاس زمین ہو، فصلیں ہوں، تو یہ محبت جو ہے، یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی، یعنی یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب چیزوں سے محبت ہر انسان کرتا ہے، چاہے کتنا بھی وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ عارضی زندگی کا سامان ہے، کہ یہ اس کی اٹریکشن جو ہے، اس کی ان چیزوں کی اٹریکشن کا ذکر کر کے کیا کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کے فائدوں کی ہیں۔ اللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے، مآب یعنی لوٹنے کی جگہ، یعنی اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ جنت کی شکل میں۔
اب یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، شہوات مردوں کی عورتوں کے لیے، بیٹوں کی، خزانوں کی، بینک بیلنس، خزانوں سے مراد کیا ہے؟ بینک بیلنس. ہر انسان چاہتا ہے میرا بینک میں کچھ ڈپازٹ ہو، فکسڈ رکھا ہوا ہو پیسہ. اور اس کے بعد سونا، چاندی، گھوڑے، برانڈیڈ گھوڑے، اور اس کے علاوہ مویشی جانور اور کھیتیاں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اٹریکشن کا ذریعہ بنائی ہیں یہ چیزیں، کہ ہر انسان ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اس آیت کے بارے میں، یعنی یہ آیت کو پڑھ کر وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب یہ نہیں کہ یہ چیزیں مجھے خوشی نہ دیں. تھوڑی سکرین نیچے کریے لیپ ٹاپ کی. یا رب یہ نہیں کہ یہ چیزیں مجھے خوشی نہ دیں، مگر میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ نعمتوں کا میں حق ادا کروں. یعنی یہ نعمتیں خوشی تو دیتی ہیں، لیکن دعا میری کیا ہے کہ یہ نعمتوں کا میں حق ادا کروں. یہ نعمتوں میں گم نہ ہو جاؤں، بلکہ ان کا حق ادا کروں. یعنی جس طرح سے ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اس طرح سے میں اس کا استعمال کروں. کہ یا رب یہ نہیں کہ یہ چیزیں مجھے خوشی نہ دیتی ہوں، مگر میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ نعمتوں کا حق ادا کروں. یعنی ان کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے ویسا میں آپ کی راہ میں ان کو استعمال کروں. یہ سب مجھے توفیق دے. یعنی جیسا ان نعمتوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ویسا میں ان کے ساتھ معاملہ کروں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ مجھے ان چیزوں میں جو شر ہے ان سے بچانا، کہ ان چیزوں میں جو میرے لیے شر ہے ان سے مجھے بچانا، اور ان چیزوں کو میں حق ادا کر سکوں. یعنی ان چیزوں کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق دینا، میں ان کا حق ادا کر سکوں. کیا سبق ہے ہمارے لیے آیت نمبر 14 میں؟ کہ انسان کو یہ سب چیزوں پر، مال، اولاد، زیورات، گاڑی، بنگلے، گھر، یہ ساری چیزوں پر انسان کو توکل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، اور نہ ہی ان کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور اپنی نگاہوں کو ہمیشہ آخرت پر رکھنا چاہیے کہ چاہے دنیا میں یہ ملا بھی ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے، ایک دن چلے جانا ہے. اگر سامان، بنگلے رہ جاتے ہیں، انسان چلا جاتا ہے. گاڑیاں، بنگلے بعض لوگوں کے رہ جاتے ہیں، زمین جائیداد، لیکن انسان ہی نہیں رہتے ہیں. بیٹے کیمرہ نیچے کرو لیپ ٹاپ کا. تو انسان کو ہم اپنی نظر جو ہے آخرت پر رکھنی چاہیے، ان چیزوں پر نہیں رکھنا چاہیے کہ ان سے میری عزت ہے، ان سے میری شان ہے، یہ چیزیں مجھے عزت دلاتی ہیں. نہ، انسان کو ان کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی نظروں کو آخرت پر رکھنا چاہیے، آخرت کے بڑے فائدوں پر رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور ان نعمتوں کا مجھے حساب دینا ہے. اس چیز پر زیادہ فوکسڈ کرنا چاہیے کہ اللہ کے پاس جا کر ان تمام نعمتوں کا حساب دینا ہے. اللہ میرے لیے حساب آسان کر دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں اس کو اتنی دعا کرنی چاہیے، اتنی اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. اللہ نے اللہ بیٹے دیے، گھر دیے، سب کچھ، اللہ حساب آسان کرنا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ قائم رکھنا، کہیں چیزوں میں گم ہو کر ہم دین سے دور نہ ہو جائیں، اولاد میں، مال میں گم ہو کر ہم دین سے دور نہ، غفلت نہ برتنے لگ جائیں. تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو؟ اُنبئ کس سے ہے؟ نبأ، اہم خبر. کیا خبر دیں تم کو
कि आप कहिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या आप इनसे कहें कि क्या मैं तुमको इससे अच्छी चीज़ की खबर दूँ, बिखैर जो बेहतर है, मिन ज़ालिका, इससे भी ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा अल्लाह के पास जो बेहतर है वो है लिल्लज़ी अत्तक़ू, वो जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। लज़ीना, वो लोग, अत्तक़ू, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। तक़वा क्या है? बचना, एहतियात करना, बच बच कर ज़िंदगी गुजारना। यानी जिन लोगों ने अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारी, किसी को कहते हुए, किसी से मामला करते हुए, हाँ, किसी के साथ देन लेन करते हुए, इबादत में भी, अल्लाह के साथ भी, बंदों के साथ भी बच बच कर, डर डर कर कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, हाँ, अल्लाह मुझसे दूर ना हो जाए। कितनी भी बड़ी नेमतें हैं, लेकिन हर टाइम इंसान डरते रहता है, अल्लाह से बचते रहता है, इस्तिग़फ़ार करते रहता है, कोई चीज़ मुझे गुमराह ना कर दे। तो जिसने तक़वा इख्तियार किया, हाँ, जो बचा, अल्लाह की नाराज़गी के कामों को छोड़ दिया। हाँ, तक़वा क्या है? अल्लाह की नाराज़गी के कामों को छोड़ देना, अल्लाह की रज़ामंदी के काम करना, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करना। तो जिसने ये अमल इख्तियार किया, इंदा रब्बिहिम, उसके रब के पास जन्नात, जन्नतुन की जमा जन्नात, बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उसके नीचे अनहार, नहर की जमा है, नहरें, खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेगा उसमें, और व अज़वाज, और बीवियां हैं, अज़वाज ज़ौज की जमा है, यानी उनके लिए क्या है? मुताहरा औरतें हैं, पाकीज़ा, साफ सुथरी औरतें हैं जन्नत में, मुताहरतुन पाकीज़ा, और रिदवान मिनल्लाह, और रज़ामंदी है अल्लाह की, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएंगे। यानी यहाँ पर वल्लाहु, और अल्लाह, बसीरुन, देखने वाला है, बिल इबाद, बंदों को, यानी बंदे कर क्या रहे हैं अल्लाह की नेमतों को पाकर, अल्लाह की ये नेमतें पाकर बंदे क्या कर रहे हैं? अल्लाह तमाम बंदों को देख रहे हैं, लेकिन इन नेमतों में रहकर जो बचते रहा, डरते रहा, हक भी अदा करते रहा, फिर भी डरते रहा, अल्लाह पता नहीं ज़ुबात सही हुई है कि नहीं हुई, कोई कमी तो नहीं हो गई। हाँ, पहनकर भी कोई चीज़ डरता है, अपना माल है, लेकिन पहनते हुए भी डरता है, अल्लाह किसी का दिल ना टूट जाए, हाँ, किसी का कहीं कहीं मेरी तरफ किसी की कोई नज़र ना हो जाए। ये है तक़वा, बच बच कर ज़िंदगी गुजारना, खौफ़ खुदा में ज़िंदगी गुजारना। तो जिसने तक़वा इख्तियार कर लिया, हाँ, तो वो क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में उसको क्या बदला है? बेहतरीन बदला, जन्नात हैं, जन्नत भी नहीं, जन्नात, बागात, एक नहीं कई कई जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें, यानी उसकी खूबसूरती का जिक्र है। वह अज़वाजुम मुतहरा, यानी पाकीज़ा बीवियां हैं, यानी पाकीज़ा औरतों का जिक्र है यहाँ पर, जो साफ सुथरी होंगी, जिनमें कोई बुराई नहीं होगी। यानी इस आयत में ख़ास तौर पर औरतों का जिक्र किया गया है जो पाक दामन औरतें होंगी। हाँ, यानी जन्नत भी पाक है और उसके अंदर जो नेमतें मिलेंगी, हाँ, ख़ास तौर पर वो भी पाक होंगी। यानी वो जोड़े जो मिलेंगे, मर्दों के लिए औरतें, औरतों के लिए मर्द, तो वो भी पाक होंगे, यानी उनमें कोई बेहयाई नहीं होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी नेमत जो मिलेगी, क्या मिलेगी? अल्लाह की रज़ामंदी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतियों से कहेंगे कि मैं आज तुमको वो चीज़ देता हूँ, कि वो चीज़, यानी जन्नती कहेंगे अल्लाह ताला हर नेमत मिल गई हमें, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन लास्ट में अल्लाह फरमाएंगे कि अब मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा, हाँ, वो चीज़ ये होगी कि जो मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँगा। अल्लाह ताला की नाराज़गी इंसान को सारी ज़िंदगी यही तो तड़पाती है ना, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह दूर ना हो जाए। लेकिन जन्नतियों को ये खुशखबरी मिलेगी कि अब उनसे अल्लाह ताला कभी नाराज़ नहीं होंगे। अल्लाह की रज़ा, हमेशगी की रज़ा, कि अल्लाह उससे हमेशा राज़ी रहेंगे। रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु, और अल्लाह बसीरुन बिल इबाद। हज़रत अब्दुल्ला बिन सईद खुदरी रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नती लोगों से पूछेंगे क्या तुम अब खुश हो? यानी इतनी नेमतें देकर
वो कहेंगे परवरदिगार भला अब भी हम खुश ना होंगे, क्या कमी है, अब तो हम बहुत खुश हैं, जबकि आपने वो सब कुछ अता किया जो दूसरों को नहीं मिला। हाँ, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुम्हें वो नेमत देता हूँ जो इन तमाम नेमतों से अफजल है। और वो पूछेंगे भला इन नेमतों से अफजल कौन सी चीज़ है? तो अल्लाह फरमाएंगे वो है मेरी रज़ामंदी कि अब मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें इंसान को मिलेगी, लेकिन किसके लिए मिलेंगी? जो फिद्दा में, जो सोने में, चांदी में, हाँ, खेतियों में, दुनिया के बंगलों में गुम ना हुआ, बल्कि उसमें भी डरते रहा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, हाँ, अल्लाह के रास्ते में उन चीज़ों का हक़ अदा किया, तो अल्लाह ताला उनको इतनी बड़ी नेमतें अता करेंगे। यानी दुनिया में भी अल्लाह ने उसको नेमतें दी और आखिरत में भी बड़ी नेमतें उसको मिलेंगी। और बसीरुन बिल इबाद से क्या मुराद है कि जब कोई इंसान हमें ये कहे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हाँ, तो फिर हमारा क्या हाल होता है? बसीरुन बिल इबाद का माना क्या है कि जब दुनिया में कोई इंसान हमें कह दे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हाँ, मेरी नज़र है तुम्हारे ऊपर, तो इंसान क्या हो जाता है? अलर्ट हो जाता है, होश में आ जाता है, संभल जाता है, हाँ, अपनी कारकर्दगी दुरुस्त कर लेता है। अब यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है, क्या कर रहे हो तुम, किधर जा रहे हो, हाँ, क्या इन चीज़ों में गुम होकर तुम रब को भूल जा रहे हो, आखिरत को भुला कर बैठे हो? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को वार्न कर रहे हैं कि अल्लाह देख रहे हैं, देखो तुम अपनी कारकर्दगी पर नज़र रखो, तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से अपने सुबह शाम गुजार रहे हो, किस तरह से तुम अपने मालो मता को, अपने औलादों को, अपने सामान को किस रास्ते पर लगा रहे हो, अल्लाह सब देख रहे हैं, अल्लाह सब लिख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह बसीरुन बिल इबाद, अल्लाह देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। तो इंसान को समझाने के लिए और अलर्ट रहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, हाँ, कि मैं देख रहा हूँ। फरिश्ते तो बाद में, हम तो फरिश्तों से ही डर जाएं, फरिश्ते देखते हैं अगर हमें दिख जाएं हम तो ऐसे सुधर जाएं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हय्यु या क़य्यूम हैं, हमेशा जिंदा हैं, हमेशा कायम रहने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो हमारे सुधारने के लिए है कि इंसान सीधा हो जाए, दुरुस्त हो जाए, अपने अमल को ठीक कर ले। अल्लाज़ीना वो लोग यक़ूलूना जो कहते हैं रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना बेशक हम आमन्ना ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना बस बख्श दे हमें, फ़ग़फ़िर लना गैन फ़ारा गफ़रा, हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी इसी से है, बख्शिश मांगना, तौबा करना, पलटना, गुनाहों से बाज आ जाना, हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, तो फ़ग़फ़िर लना बस बख्श दे हमें, ज़नूबना ज़म की जमा है, ज़ा नून बा ज़म, ज़नूबना उसकी जमा है, हमारे गुनाहों को, वक़ीना और बचा हमको, ये नून जो आ रहा है ना पीछे, ये जमा का मतलब देता है, हमें बचा, वाक़ी बचा, वक़ी क्या है बचाना, नून क्या है हमें बचा, अज़ाबन्नार आग के अजाब से। यानी जो मोमिन होता है, जो मुत्तकी शख्स होता है, उसके अल्फाज बताए जा रहे हैं कि जो अल्लाह का मोमिन बंदा होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी नेमतों में क्यों ना रहे, लेकिन उसकी नज़र जो होती है वो रब की रज़ा के ऊपर होती है, अपने गुनाहों पर होती है उसकी नज़र, चाहे वो कितनी भी नेमतों में क्यों ना रहे, हाँ, लेकिन उसकी नज़र जो होती है अपने गुनाहों पर होती है कि मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं। वो ये नेमतें पाकर आफर नहीं जाता, हाँ, बल्कि क्या कहता है, मैं तो और गुनहगार हूँ, मुझे तो और शुक्र करना चाहिए, हाँ, मेरे गुनाहों के बावजूद रब ने मुझे इतना कुछ दे दिया, मैंने तो रब को कुछ भी नहीं दिया। तो उसकी नज़र जो होती है अपनी गुनाहों पर होती है और अपनी आखिरत पर होती है। वो दुनिया की ये नेमतें, बंदा मोमिन दुनिया की ये नेमतें पाकर आफरता नहीं,
हाँ, बदगुमान नहीं हो जाता, तकब्बुर नहीं करता, अपने आप को बड़ी चीज़ नहीं समझता, बल्कि उसका और ज़्यादा झुक जाता है। कहते हैं ना कि जो टाली को, जो दरख्त को खूब फल लगे, वो टाली क्या होती है, नीचे झुक जाती है, ज़मीन को लग जाती है। हाँ, जिसको जितना ज़्यादा फल लगता है, क्यों नीचे लगती है? इसलिए कि इसी तरह से जो बंदा मोमिन होता है, उसको जितनी नेमतें मिले, औलाद की, दौलत की, माल की, वो तो झुक जाता है, वो तो डर जाता है, अल्लाह कोई पकड़ ना हो मुझे, कहीं मुझ पर कोई अचानक मुश्किल ना आ जाए। अपने गुनाह उसको ज़्यादा याद आने लग जाते हैं। इसी तरह से ये होता है ना कि जब किसी इंसान को अल्लाह खूब नेमतें देते हैं, फरावानी देते हैं, खुशहाली देते हैं, हाँ, जोड़े अच्छे दे देते हैं, मियाँ बीवी अच्छे हैं, हाँ, बच्चे भी हो गए, घर भी अच्छा है, अच्छा खाने को भी है, पहनने को भी है, फिर इंसान क्या होता है, यकायक अज़ाब, कोई ना कोई इंसान पर वबा आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है। क्यों? इंसान जब गफलत में ज़्यादा डूब जाता है, क्योंकि ये नेमतें जब पाता है ना इंसान, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को याद रखें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़राइज़ को याद रखें, नमाज़ें भी भूल जाते हैं ये मालो दौलत में लगकर, हाँ, दीन का काम भूल जाते हैं, अल्लाह ज़कात अदा करनी भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, यकायक कोई सी ऐसी मुश्किलें आती हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला इंसान को अलर्ट करते हैं कि संभल जाओ, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर ईमान वालों की सिफ़ात, मोमिन की सिफ़ात इस आयत में बताई जा रही है कि मोमिन बंदा जो होता है, उसकी निगाहें अपने गुनाहों पर होती हैं और वो ये नेमतें पाकर अकड़ता नहीं, बल्कि क्या कहता है, रब्बना आमन्ना, उसका ईमान अल्लाह पर और मजबूत हो जाता है, हाँ, और तवक्कुल उसका अल्लाह पर और भरोसा बहुत मजबूत हो जाता है, और वो अपने सबसे बढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, फिर वो आखिरत के अजाब से और डरने लग जाता है। यहाँ तो अल्लाह तुमने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह मुझे आखिरत से भी नेमतें अता करना, वहाँ मुझे अजाब ना देना, वहाँ मुझे किसी बात पर पकड़ ना लेना, क्योंकि पकड़ का एहसास होना चाहिए ना हमें। अब जिस बंदे के पास कुछ है ही नहीं, उसको क्या पूछोगी, हाँ, क्या होगी पूछ। जितनी ज़्यादा असल तो पकड़, जितनी ज़्यादा जिसको नेमतें मिली होगी, वो ज़्यादा पकड़ में होगा, वो ज़्यादा पूछ में होगा, पूछगिछ ज़्यादा उसकी होगी जिसको ज़्यादा नेमतें मिली होगी। हाँ, अब जिसको पास जिस्म भी पूरा नहीं, हाँ, किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, किसी के पास औलाद नहीं, हाँ, किसी के पास इतनी खूबसूरती नहीं, हाँ, किसी के पास घर नहीं, हाँ, किरायों पे हैं, किसी के घर में बसे हुए हैं, या किसी के पास दिमाग ही नहीं, ज़हनी सलाहियत ही नहीं है, तो क्या पूछोगी उससे, क्या पूछोगी। लेकिन जो बंदा इंसान जिसके पास जितनी ज़्यादा नेमतें होंगी, उसको उतना ज़्यादा पूछोगी, उतनी ज़्यादा उसकी पकड़ होगी, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज़ का। दुनिया में ये नेमतें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर सवाल जवाब होंगे ना, फिर इंसान अफसोस करेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है ना, वो बहुत मुझे पसंद है। वो दुआ शायद आप लोगों को तो मांगने के लिए डर भी ना हो जाए कहीं कि हाय ये मांग के कहीं हम फकीर ना हो जाएं। हाँ, क्या मांगते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मुझे मोहताज रखना, मिस्कीन रखना, हाँ, अल्लाह मुझे मिस्कीन रखना, मुझे मिस्कीनों के साथ रखना, अल्लाह मुझे मिस्कीनों के साथ उठाना। हाँ, इतनी आजिज़ी थी उनके अंदर। हाँ, और देखो फिर ऐसी ज़िंदगी गुजरी उनकी, मिस्कीनी में गुजरी। और उसी के साथ क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान हिसाब किताब उस दिन उसका होगा जिसके पास जितनी ज़्यादा कम नेमतें होंगी। हाँ, ज़्यादा नेमतों वाला का अपनी नेमतों का हिसाब देते 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 ही आधा हो जाएगा, और अगर सही नहीं हिसाब, हाँ, फिर और पकड़, फिर अजाब। वकीना अज़ाबन्नार, अल्लाह मुझे आखिरत के अजाब से बचाना। अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, सच बोलने वाले, वलकानितीना, इताअत गुजार। कनात इसी से है, तंबू कनात जो कहते हैं ना, वही कनात क्या होती है, मेन पार्ट होता है जिस पर पूरा दूसरी चीज़ें जो शामियाने होते हैं उस पर बांधे जाते हैं। तो कनात इख्तियार करने वाले, हाँ,
استقامت اطاعت گزار بندوں کے لیے اس لیے لفظ آتا ہے. قانتین اطاعت گزار، اور والمنفقین خرچ کرنے والے. انفاق نون فاقہ نفقہ کیا ہے؟ انفاق خرچ کرنے والے. والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے. مستغفرین بھی کیا ہے؟ غفارہ ہی اس کا روٹ ہے. بخشش مانگنے والے، توبہ کرنے والے. بالاسحار، اسحار سحر کی جمع ہے، سین ہارا سحر، یعنی سحر کہتے ہیں رات کی تاریکی. فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، سحری سے ہے. سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے 2 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، 1:30-2 بجے سے. تو اس وقتوں میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والے، یہ ہیں سچے مومن. سچے مومن جو ہیں اپنے عمل سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اور سچے مومن جو ہیں وہ ان کی دعاؤں سے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. یعنی اتنی ساری نعمتیں پا کر بھی وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اور خرچ کرنے والے، اور اللہ سے سب سے بڑھ کے مغفرت مانگنے والے. اور کب؟ سحری کے وقت، یعنی تہجد میں اٹھنے والے. یہ خاص صفات ہوتی ہے بندہ مومن کی، کہ فرض تو بہت دور کی بات ہے چھوڑنا، اس کو لیٹ بھی نہیں کر سکتا فرضوں کو تو بندہ مومن. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے آدھی رات کا اٹھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے جس کو اللہ نصیب کر دے. سحری کے وقت کا اٹھنا. شاہد اللہ ہو، یعنی اس آیت میں تقوی والوں کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا پیچھے آیت نمبر 13-14 میں، تو تقوی والوں کی کوالٹیز یا صفات بتائی گئی ہیں اس آیت میں. یہ آیت میں اور اوپر والی آیت میں 15 اور 16 میں تقوی والوں کی صفات کیا بتائی گئی ہیں؟ کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تقوی والے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور تہجد کے وقت اٹھ کر جب لوگ سوتے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے. متقی لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بھی ایسا تقوی عطا کرے کہ جو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان جو اس کے اندر ڈھل جائے. یہ اندر کی کیفیات ہوتی ہیں، ظاہری نہیں. اب صبر کا تعلق اندر سے ہے، سچ کا تعلق اندر سے ہے. اسی طرح سے اطاعت گزاری، فرما برداری، اس کا تعلق بھی انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اللہ سے بخشش مانگنا، مغفرت کرنا، یہ بھی انسان کا تعلق اللہ سے ہے. خرچ کرنا کئی مرتبہ انسان اندر بھی کرتا ہے، باہر بھی کرتا ہے. کبھی چھپ کر بھی کرتا ہے، کبھی دکھا کر بھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن زیادہ تر تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا عمل، متقی شخص کون ہوتا ہے، تقوی والا کون ہوتا ہے. خالی کہنے سے تقوی نہیں آ جاتا. میں تو ابھی بہت ڈرتی ہوں، توبہ استغفار. تقوی آتا ہے جب انسان کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اس کو مشکلات پر اس کو نعمتیں پا کر بھی صبر آ جائے. نعمتیں پا کر صبر کیا ہے؟ کہ وہ نعمتوں کو اپنے لیے ہی نہ رکھے بلکہ اللہ کے بندوں کو دے. اور پھر اس کے بعد سچ بولنے پر بھی کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز سچ بولنے سے روکتی نہیں ہے. متقی شخص کو ہمیشہ پہچان کیا ہے؟ اس کی زبان سچی ہوتی ہے، وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. اور فرما برداری اس کے رگ رگ میں بھری ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی صفت میں، اس کی کوالٹی ہوتی ہے. مما رزقناہم ينفقون، جو بھی اللہ نے ان کو مال دیا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. وہ چھپا کر نہیں رکھتا، وہ بخیل نہیں ہوتا. متقی شخص کیا نہیں ہوتا؟ بخیل نہیں ہوتا، کبھی روکتا نہیں. وہ خود تنگی برداشت کر لے گا لیکن کبھی کسی کو جواب نہیں دے سکتا. ہمارا حال کیا ہے؟ کسی نے مکسی مانگ لی، گرائنڈر مانگ لیا، نہیں ہمارا تو خراب ہے. کیا برانڈیڈ چیز ہے، دے دی تو خراب ہو جائے گی. کتنے تنگ دل ہیں.
अपने लिए सारा कुछ अच्छा, लेकिन कोई मांगने आ जाए, कोई इस्तेमाल के लिए कह दे तो कितनी तंगी करने लग जाते हैं। तो दिलों की तंगी ये क्या है? ये भी तकवे वालों की पहचान नहीं। उनके दिल खुले होते हैं, उनके हाथ खुले होते हैं, उनकी ज़बानें पाकीज़ा होती हैं, उनके दिमाग भी खुले होते हैं। हाँ, दिमाग खुले कैसे होते हैं? वो छोटी छोटी बातों पर सोचते नहीं बैठते, उसने ये क्यों कर दिया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं मांगा, उसने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो छोटी छोटी बातों पर बहस मुबाहिसा नहीं करते होते, झगड़ते नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर देन लेन नहीं बंद करते, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करते, ताने नहीं देते। उनके दिल भी खुले, उनका दिमाग भी खुले, उनकी ज़बानें पाकीज़ा। तो ये पहचान होती है। और सबसे बढ़ के अल्लाह से रातों के वक्त उठकर गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। हाँ, दिन में भी इंसान मांग सकता है, लेकिन रात को खास तौर पर उठना क्यों उठते हैं? क्यों? क्योंकि उनको यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले आसमान पर हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद पुकारते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसको दूं। कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश कर दूं। हाँ, हमारे जैसों का, अक्सर लोगों का हाल क्या है? ऊपर से दीनदारी के दावे होते हैं, लेकिन अगर उनको कहो भाई रातों को उठकर अल्लाह से मांगो, तहज्जुद पढ़ो, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगो, हाँ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, वो कर नहीं सकते। रात को उठ नहीं सकते। रात का उठना बहुत भारी और तकलीफें अपनी इतनी बयान करेंगे। लेकिन अगर नमाज के लिए कह दो भाई अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ा कर मांगो, खास तौर पर तहज्जुद में उठकर अल्लाह से अपनी हाजतें रखो, अल्लाह बांट रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं। हमारा तो यकीन भी नहीं है कि अल्लाह है फिर उस टाइम। अगर यकीन हो, कोई सोया रह जाए उस टाइम। अगर वाकई हम में से हर एक का यकीन हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस टाइम आसमान अव्वल पर हैं, तो कोई सो सके उस वक्त। हाँ, कितने आराम से सोते हैं। यहाँ तक के बाज़ लोगों को तो फजर का भी होश नहीं रहता। सहर में उठना तो बहुत दूर की बात है, फजर भी मिस हो जाती है। कितने हम में से लोग ऐसे हैं, हाँ, जो फजर कज़ा करके पढ़ते हैं, फिर अपने आप को मुसलमान, मोमिन, बहुत अपनी अच्छाइयों के दावे, हम बहुत नेक हैं, हम बहुत दीन का काम करते हैं, हमारे अंदर इतनी खूबियाँ हैं, फिर अपने खूबियों के चर्चे करते हो तुम। अपने अंदर तो देख लो क्या क्या रखा हुआ है तुमने। अपने दिल को देखो, अपनी ज़बान को देखो, अपने अमाल को देखो। हाँ, क्या सबसे बड़ी मुत्तकी शख्स की पहचान क्या पता चलती है यहाँ पर? कि वो सबसे ज़्यादा अपने आप को देखता है, वो किसी को नहीं देखता। और सबसे बढ़कर उसकी नज़र अपनी गलतियों पर होती है। और हम में से अक्सरियत क्या है? हम अपने आप को साफ सुथरा, पाकीज़ा, मैं बड़ी नेक, मैं बहुत अल्लाह वाली, मैं लोगों के साथ भलाई करने वाली, बुरा वो शख्स बुरा, वो शख्स बुरा, वो शख्स बुरा। हर एक के अंदर कीड़े कीड़े कीड़े। कोई है जिससे हम खुश हों? लेकिन मैं बहुत अच्छी, मैं मोमिन की निशानी होती। मोमिन क्या होता है? अपने आप को हमेशा अपने आप के गुनाहों पर उसकी नज़र रहती है और दूसरे की अच्छाइयों पर, अपनी गलतियों पर, हाय मैंने ये कर दिया, हाँ, मेरी ये कमी है, मैंने ज़रूर यहाँ पर कमी की होगी। उसकी हर कमी अपने में निकालता है, चाहे वो अल्लाह के साथ, हाँ, कोई उसके ऊपर मुश्किल आ जाए, वो अपना ही सोचेगा, मैं शायद नमाज से ही नहीं, शायद मेरे अस्कार से ही नहीं। चाहे बंदों के साथ कोई झगड़ा हो जाए, कोई बंदे नाराज़ हो जाए, फिर भी वो ये क्या सोचेगा, कोई मेरी ही गलती होगी। लेकिन मुनाफिक क्या होता है? वो हमेशा दूसरों पर नज़र रहती है, उसको अपने नहीं गलतियाँ दिखते होते। तो ये चार्ट जो है, इसको लिख कर लगा लें, ये चार्ट को। हाँ, और दूसरा ये चार्ट उन लोगों के लिए भी है जिनको अल्लाह ने दुनिया की नेमतें दी हुई हैं। और नेमतें पाकर अगर अपने आप को तकब्बुर से नहीं बचा सकते, जब तक कि ये पता ना हो कि ये दुनिया की नेमतें आर्जी हैं, ये चले जाने वाली हैं, ये सदा नहीं रहने वाली, आखिरत हमेशा की है, तो इंसान को दिल में ना अपने रब को वक्त देना मुश्किल लगे, ना अपने रब के लिए कुछ पढ़ना मुश्किल लगे, ना अल्लाह के बंदों को माफ़ करना मुश्किल लगे, ना अल्लाह के बंदों के साथ कोई बुराई भी करे उसके बावजूद अच्छा सलूक करना बुरा उसको मुश्किल ना लगे। कोई मुश्किल नहीं है जब इंसान को पता है सब अल्लाह देख रहे हैं, वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद,
हाँ, आखिरत की ज़िंदगी सदा की ज़िंदगी है। क्या हुआ दुनिया में, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे बुरा कह दिया, या मेरे साथ कोई ऐसा मामला कर दिया, आखिरत में तो सब मिलेगा ना। ये दुनिया की ज़िंदगी है ही कितने दिनों की। हमारे सारे झगड़े, लड़ाइयाँ, सब नफ़रतें ख़त्म हो जाए, माफ़ करने वाले बन जाएं, हाँ, अल्लाह के आगे झुकने वाले बन जाएं, हम नरम हो जाएं, हमारे दिल साफ हो जाएं, और इंसान के अंदर से तकब्बुर तो रहे ही ना। जब इंसान को ये पता चल जाए अल्लाह का दिया हुआ सब नेमतें हैं, जब चाहे अल्लाह ले लें, किस चीज़ का तकब्बुर करना। हाँ, माल मेरा नहीं, सेहत मेरी नहीं, औलाद मेरी नहीं, बल्कि ये फिक्र होनी चाहिए कि मैंने हक अदा नहीं किया। मुझे अल्लाह ने औलाद दी, मैंने उसको दीन पर नहीं चलाया। अल्लाह ने मुझे माल और दौलत दिया, मैंने उसका हक अदा नहीं किया, मैंने उसको सही जगह नहीं लगाया। अल्लाह अभी भी वक्त है, अल्लाह मुझे रहनुमाई करें, मुझे हिदायत है। तो ये चीज़ें, पॉइंट जो हैं, ये सारे लिख लीजिए कि मुत्तकी शख्स के सिफात या क्वालिटीज़ क्या होती है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा का वादा किया है, जन्नात का वादा किया है, पाक जोड़ों का वादा किया है। वो होते हैं जो सबसे बढ़कर अपने गुनाहों पर नज़र रखते हैं, और सबसे ज़्यादा वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। हर वक्त उनको आखिरत का अज़ाब का डर उनको सताते रहता है। सबसे बढ़कर अल्लाह की दहकाई हुई आग से डरते हैं। उससे डरकर वो दुनिया में हर वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। इस्तग़फ़ार करते वक्त अल्लाह की आग को भी सामने रखा करें, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे उसमें ना डाल देना। और दूसरी चीज़, वो सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले होते हैं, बंदों के साथ भी और इबादत के साथ भी। यानी उनको बेसब्रापन नहीं होता फटाफट क्लास ख़त्म हो जाए, फटाफट कुरान ख़त्म कर लूँ, नहीं, सब्र के साथ वो इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दीन सीखते हैं। बंदे के साथ भी, अल्लाह के साथ भी, हर मामले में सब्र करते हैं और सच बोलने वाले होते हैं। झूठ तो मोमिन की पहचान ही नहीं है। मोमिन की पहचान झूठ नहीं है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता मोमिन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सच बोलने वाले होते हैं और सबसे बढ़ के अल्लाह की फर्मा बरदारी में आगे रहते हैं। यानी जैसे ही उनको कोई भलाई का, नेकी का, हाँ, कोई अच्छी बात पता चले, फौरी अमल करते हैं। इताअत गुजार और अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे होते हैं, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में उनको कोई चीज़ उनको मना नहीं करती। यानी उनको फिक्र नहीं होता कल को मेरे पास माल चला गया, मेरे पास कुछ ना रहा, कोई चीज़ कल का फिक्र नहीं उनको रोकता। वो कहते हैं अल्लाह ने आज दिया कल भी दे देगा। सबसे बढ़ के वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से उनको कोई चीज़ नहीं रोकती। न माल की कमी, कम होने का खौफ, न चले जाने का खौफ कि माल मुझसे कम हो जाएगा। वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले होते हैं। और सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करना, ये सबसे बेहतरीन अमल उनकी पहचान है। यानी तहज्जुद पढ़ने वाले और उसमें उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले होते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।